Hello students, welcome to economic class. This is Arvind Kumar Pandey, and in this video we are discussing microeconomics chapter 1. This is the video number 5, and children, in this video I will finish chapter number 1, class 11 CBSE microeconomics. So today we are going to discuss children branches of economics, right? We will discuss about branches of economics. But children, before discussing branches of economics, let me tell you the unique two words, which especially differentiate between microeconomics and macroeconomics. So let me tell you the meaning of two words first. Children, in microeconomics, we use this word mostly, individual. Right? Two words are there, aggregates and individual. These are the two words frequently used in economics. What is the meaning of these two words and why I am telling you? So children, these are the two words which tells us the branches of economics, or we can say which differentiate the branches of economics. What are these two branches? We will discuss later on. But now let me tell you the difference between individual and aggregate. So children, individual means single, right? Or you can say one unit, or you can say only one unit. Only one unit. Aggregate means summation. Aggregate means including all, right? Or we can say totality. Totality, right? Whenever we will use individual, so individual means we are discussing about the single person, single unit, right? And whenever we are discussing about aggregates, so it means including all or summation, right? These are the two you remember, because this word will be frequently used on the topic which we are going to discuss, that are branches of economics. Branches of economics, see, let me write here, branches of economics. There are two branches of economics, children. Microeconomics and macroeconomics. So children, microeconomics discuss about individual. Macroeconomics discuss about aggregates. Now you must understand why I was telling you the difference between individual and aggregates before explaining the branches of economics. So you can see, children, economics has been divided into two branches, microeconomics and macroeconomics. Microeconomics is the subject matter of for 11th class, macroeconomics is the subject matter of 12th class. In 11th class you will study microeconomics, and in 12th class you will study macroeconomics. But children, before 1930, we have only economics, right? Before 1930, we have only economics, and we were studying all the problems related to microeconomic or macroeconomic in economics only. But after the Great Depression of 1930, economists separated the two branches of economics, that are microeconomics and macroeconomics, and the credit goes to John Maynard Keynes. John Maynard Keynes. John Maynard Keynes was the person who suggested the, or we can say who evaluate the branches of
economics. It means before 1930 we solve all the economic problem in economics. Okay. For 11th class children, this knowledge is sufficient for you to understand the branches of economics. Let me tell you the subject matter of economics, microeconomics and macroeconomics. So children, here microeconomics. Microeconomics discuss about individual. Okay, so it discuss about individual consumer, individual producer, individual market, demand, supply and price. Children, these are the subject matter of microeconomics. Right? In microeconomics, children, we study the problems related to individual consumer, individual producer and individual market. Right? हम किसी एक कंज्यूमर की बात करते हैं, हम किसी एक प्रोड्यूसर की बात करते हैं और हम किसी एक मार्केट की बात करते हैं. हम ये बात करते हैं कि पर्टिकुलर कंज्यूमर मार्केट में जाकर कितनी डिमांड कर रहा है. तो ये सिंगल यूनिट, मैं सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ. अगर मैं प्रोड्यूसर की बात करूँ तो मैं बात करता हूँ कि माइक्रोइकोनॉमिक्स बात करता है सिंगल प्रोड्यूसर की, कि एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर है वो मार्केट में कितने गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है. अगर हम मार्केट की बात करें तो किसी एक मार्केट की हम बात करेंगे. ठीक है, मार्केट में. तो ये सारे चिल्ड्रन जो हो गए हमारे इकोनॉमी के इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स हो गए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स के चिल्ड्रन जो वेरिएबल हैं वो है डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस. डिमांड जो है इंक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है, प्राइस सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है या प्राइस डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, व्हाट आर द, तो ये जो है हम इसमें एक्चुअली प्राइस की बात करते हैं. आप जितने भी आप चैप्टर आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे उसमें आपको कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मार्केट, डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस, हर चैप्टर में ये जो पॉइंट है वो आपको मिलते रहेंगे. तो ये चिल्ड्रन सब्जेक्ट मैटर माइक्रो इकोनॉमिक्स का, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या एक इंडिविजुअल मार्केट की बात करते हैं. इसके ये जो वेरिएबल है इनको ये वेरिएबल है. राइट? वेरिएबल का मतलब आप जानते हैं वेरिएबल मीन्स चेंज. तो ये वेरिएबल यानी ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल यानी ये चेंज होते रहते हैं. डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, सप्लाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, प्राइस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. सो दीज आर द चिल्ड्रन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. इन शॉर्ट वी कॉल माइक्रो इकोनॉमिक्स एज प्राइस थ्योरी. हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहते हैं क्योंकि इसका जो मेन कंसर्न है वो प्राइस से रिलेटेड है. आई होप कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम बात करते हैं चिल्ड्रन मैक्रो इकोनॉमिक्स की. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में चिल्ड्रन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं चिल्ड्रन एग्रीगेट्स की. मैंने आपको बिगिनिंग में ही बता दिया. ठीक है, तो एग्रीगेट में हम बात करते हैं और कंज्यूमर की, ठीक है, और प्रोड्यूसर की, और मार्केट की. ठीक है, पूरी इकोनॉमी में जो कंज्यूमर है उनकी बात करते हैं, पूरी इकोनॉमी जो प्रोड्यूसर उनकी बात करते हैं, हम सारी मार्केट को इंक्लूड करके बात करते हैं. ठीक है, यहाँ पर माइक्रो में हम डिमांड की बात करते हैं और मैक्रो में हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की. एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, यहाँ पर प्राइस की बात करते थे, यहाँ पर हम बात करते हैं
जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट मैटर है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। दोनों डिफरेंस, तो यहाँ पर डिमांड था माइक्रो में, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड है, यहाँ सप्लाई था, यहाँ एग्रीगेट सप्लाई है, यहाँ पर प्राइस था, यहाँ पर जनरल प्राइस लेवल। यानी हम पूरे इकोनॉमी में जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये इसके वेरिएबल है डिमांड सप्लाई। इसमें हम इनकम की बात करते हैं। ठीक है, इसमें हम वेलफेयर की बात करते हैं, इसमें हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पूरी इकोनॉमी से, मतलब पूरी होल इकोनॉमी को इंक्लूड करके बात करता है। माइक्रो इकोनॉमिक में हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो इंडिविजुअल से रिलेटेड होते हैं। मैक्रो इकोनॉमी में हम सारे वेरिएबल को, सारी जो वेरिएबल मतलब सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको इंक्लूड करके उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, इसके जो वेरिएबल है मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें हम इनकम की बात करते हैं और इसमें हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। इसमें एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं और इसको हम वेलफेयर इकोनॉमी भी कहते हैं। वेलफेयर इकोनॉमी। चिल्ड्रन, तो ये था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। चिल्ड्रन, इस चैप्टर के लास्ट में एक और पॉइंट आता है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। चलिए, यहाँ पर दो और वर्ड्स आ जाते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, चलिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं एक्चुअलिटी की। ठीक है, हम बात करते हैं इसमें what was, what is and what would be। ठीक है, इसमें हम एक्चुअलिटी की बात करते हैं और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बात करता है एक आइडियल सिचुएशन की। ठीक है, हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दो एस्पेक्ट में स्टडी करते हैं। इसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कह दो या पॉजिटिव साइंस भी आप कह सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव साइंस या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करता है चिल्ड्रन एक्चुअलिटी की। इसमें हम बात करते हैं कि व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। तो इसमें जो प्रॉब्लम हम बात करते हैं वो प्रॉब्लम होती हैं जिनको हम वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम एक्चुअलिटी की बात करते हैं। तो जो एक्चुअलिटी की बात करते हैं जब हम, तो इसको हम फैक्ट से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा है, तो आप ये वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास बहुत सारे डेटा हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं, आप उससे ये वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरा जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज़्यादा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं एक्चुअलिटी की बात कर रहा हूँ, तो एक्चुअलिटी में आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि हमारे पास, इसमें हम बात करते हैं देखो, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, हमारी सिचुएशन क्या थी, क्या है, और पास्ट और प्रेजेंट को एक्सपेक्ट करके हम ये एस्टिमेट कर लेते हैं कि फ्यूचर में क्या
सिचुएशन होने वाली है, ठीक है ना। तो हमारे पास देखो पास्ट का भी डेटा है जो जिसको हम फैक्ट कह रहे थे, ठीक है। पास्ट का हमारे पास डेटा है और हमारे पास प्रेजेंट का डेटा भी है। इन दोनों के बेस पर हम फ्यूचर के डेटा को यानी फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन होने वाली है फ्यूचर में। तो ये हम बात करते हैं पॉजिटिव साइंस में या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो बात करता है एक आइडियल सिचुएशन की जो एक्चुअलिटी में है नहीं, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्योंकि हम इसमें एक्चुअलिटी की बात नहीं कर रहे, हम आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो है इसको ये जो टॉपिक होता है डिबेटेबल होता है, इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि वेरीफाई हो ही नहीं सकता क्योंकि हम एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं जो है नहीं, हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि किसी ने कहा कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है उसको जो है बंद कर देना चाहिए क्योंकि इससे जो है हमारी इकोनॉमी में कोई वेलफेयर नहीं हो रहा है। ये किसी का आइडिया है, हम एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रही है, किसी का आइडिया है। वो कह रहा है कि एमजी नरेगा जो प्लान गवर्नमेंट ने चला रखा है जिसमें 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट गारंटी देके प्रोवाइड कराती है, इसको बंद कर देना चाहिए। ये लोग क्योंकि इससे लोगों को ये पैरासाइट हो रहे हैं, लोग जो है सेल्फ डिपेंड नहीं हो रहे हैं, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड हो रहे हैं, वो खुद प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं जिससे हमारी इकोनॉमी जो है ग्रो कर सके और हमारी कंट्री डेवलप कर सके। तो ये एक इंडिविजुअल का आइडिया है, इसको डिबेट किया जा सकता है कि नहीं बंद कर दिया जाएगा तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट, वैसे ही हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज होने लगेगी। तो ये क्या है, एक आइडियल कंडीशन, एक आइडियल सिचुएशन है, तो इसमें डिबेट किया जा सकता है। तो इसको जो है हम वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं एक्चुअलिटी की, तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ये समझ में आया होगा। तो इस विद दिस पॉइंट चिल्ड्रन हम लगभग चैप्टर 1 और 2 आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है, वैसे हमारे हिसाब से चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्शन था ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इसमें कुछ और पॉइंट होगा तो मैं इसका एक और वीडियो बना दूंगा, वरना हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पहुंचेंगे। तो आप वीडियो देखते रहिए। अगर आपको वीडियो इससे समझ में आ रहा है तब आप उसको लाइक करिए, शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो आपको पूरा सिलेबस मिलेगा चैप्टर वीडियो नंबर 1 से लेकर, और आप आखिरी तक हमारी वीडियो को रेगुलर देखिए, आपको समझ में आएगा और बार बार उसको देखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।